Good evening, students. Everyone's camera should be on. If your camera is not on, I'll be removing you from the lecture. Everyone's camera should be on. Astha, Amruta, Bhakti, Bhaumik, Disha, Kenneth, Malvika, please turn on your cameras. We'll be starting with the lecture after that. Students who have entered the lecture now, please turn your cameras on. Your camera should be on for the entire lecture. And not only for this lecture, for all the lectures. If you won't turn on your cameras, you'll be removed from the meeting and your parents will be called. So please turn your cameras on. Trisha, Monalika, Smriti, Sonali, Gayatri, Sainath. Okay, Vaishnavi. But others, you'll have to turn your cameras on. Malvika, Nihal, Rachna, Rinku. Students. Students are still entering. Just a minute. Students who have not turned on your camera, please turn on your cameras. Atharva Pate, Fazila, Harsh Gupta, Kriti, Lavanya, Mehak. No, Mehak's camera is on. Nihal, Pratham, Sanjana Suryavanshi, Siddhi, Shrishti, Vaishnavi. Turn on your cameras on fast. The lecture will be delayed otherwise because of you.
Yeah. Students, turn on your cameras so that I can start with the lecture. I'll be starting with the lecture now. So I will be entering. So please keep your cameras on only. So you can start with the lecture now. Okay, ma'am. Okay, so good evening, guys. Can you hear me? Yes, sir. Okay, fine. Just give me a sec. Okay, so how was the test? आप लोगों ने टेस्ट दिया? हाँ? Can you guys hear me? Okay, you guys can see the full screen? Okay, fine. Okay, so yeah, how was the test? आप लोग बता नहीं रहे हो टेस्ट कैसा था? हाँ? How was your first test? Was No, paper sir, test difficult or नहीं difficult था या easy था paper? हाँ, easy था. Okay, वर्षा. ठीक है. Fine. So easy था. चलो ठीक है. Please mute yourself. Yash. Okay. So whatever you have to say, just say it in the chat. वो सम का एक बार करके बताइए ना. कौन सा सम? सम मैंने क्लास में कराया था, वही सेम सम है. थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ. थर्ड क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा. चलो ठीक है, हम लोग बाद में आखिरी में, मुझे जब 5-10 मिनट बचेगा तो मुझे एक बार याद दिलाना. वी विल गो थ्रू दैट. ठीक है. ओके. हाँ ठीक है, हम लोग आखिरी में एक बार डिस्कस करेंगे. ठीक है. we'll discuss the questions in the end, like in last 15 minutes we will discuss the paper. Okay, so let's get started. So now what we have done in the last lecture is, in the last lecture we talked about susceptibility, and then we talked about क्या कहते हैं this here,
like putting the charges and what happens over here is, क्या होता है यहाँ पे, पोलराइजेशन होता है। याद है आप लोगों को, हम लोग यहाँ पे 60-50 का एग्जांपल लेके सॉल्व किए थे, 60 कूलम चार्ज डाले थे तो 10 कूलम भी आ रहा था। बट मुझे अगर 60 कूलम लाना है बिना इस डाइलेक्ट्रिक के, तो हमको कितना चार्ज डालना पड़ता, 110। याद है ये सब आप लोगों को? हाँ, याद है ना? ओके, तो हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है। एंड दोज हु आर न्यू, ठीक है, व्हाट दे कैन डू इज, जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनके आप वीडियोस देख लो, जो भी न्यू है, नए स्टूडेंट्स हैं। इज देयर एनी न्यू स्टूडेंट डू इन द क्लास? यस, कोई है कि नया? चलो ठीक, कोई नहीं है। ओके ओके ओके, सो मानसी, मानसी, what you can do is you can take the previous lectures के videos, ठीक है, and from today we'll start a new topic, थोड़ा like पुराना थोड़ा connected रहेगा, but I'll suggest you to just go through the previous videos, and if you find any doubt anywhere you can ask me in the chat, ठीक है? Okay. So yeah, so in the last lecture we have talked about polarization, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, चलो विद द हेल्प ऑफ दिस पोलराइजेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पोलराइजेशन, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक कैपेसिटर, ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक अ कैपेसिटर, ठीक है। सो हियर व्हाट वी हैव डन इन दिस एग्जांपल, इफ यू गाइस रिमेंबर, वी हैव रिड्यूस्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, दिस, ये वाला बीच का जो मटेरियल इलेक्ट्रिक, हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही थी, ठीक है। बट अगर हमको वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, so what we have to do is we have to put more number of charges। so इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको सेम नंबर ऑफ चार्जेस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा, सॉरी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ पे रखना पड़ रहा है। जैसे सपोज करो जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, तब अगर मुझे क्या कहते हैं यहाँ पे कितना चाहिए चार्ज, यहाँ पे मुझे चार्ज चाहिए, क्या कहते हैं, 50 कूलम वाला, 50 कूलम के इक्वल चार्ज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सीधा 50 कूलम का चार्ज डाल दूंगा और 60 कूलम का चार्ज डाल दूंगा। बट अगर सपोज करो मुझे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया है एंड उसके बाद में मुझे चार्ज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पे 110 कूलम चार्ज, 110 कूलम का चार्ज। ये एग्जाम्पल सबको याद है ना, ये वाला एग्जाम्पल हमने जो किया था लास्ट में, याद है? 50 कूलम वेस्ट हो जा रहा है, 50 कूलम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट हो जा रहा है, बाकी का जो बचा कूलम वो यहाँ पे आ रहा है, याद है? अच्छा एक बार रिपीट कर दें, चलो ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, आई हैव अ प्लेट ए एंड आई हैव अ प्लेट बी, ओके। जब ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, दिस इज अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब सबको याद होगा ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, टेस्ट के लिए आप लोगों ने पढ़ा है, तो आई होप एवरीवन नोज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। सो नाउ जब यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, तो जब मैं यहाँ पे 60 कूलम चार्ज डालता हूँ, जब मैं यहाँ पे 60 कूलम चार्ज डालता हूँ प्लेट ए और प्लेट बी पे, तो क्या होता है, 60 कूलम चार्ज की इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बाद में अब मैंने क्या किया, जब यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, जब ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पुट किया, तो क्या हो गया है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। इसके वजह से क्या हो गया कि जो 50 कूलम की इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कम हो गई। तो इसके वजह से जब मैंने यहाँ पे 60 कूलम चार्ज डाला,
तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे कितना आ रहा है, सिर्फ 10 कूलम। क्यों? क्योंकि 50 कूलम ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग इट, पोलराइज करके उसको वैनिश कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वापस उतना ही चार्ज चाहिए, 60 कूलम के इक्विवेलेंट चार्ज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई विल पुट 110 कूलम चार्ज। जब मैं 110 कूलम चार्ज डालूंगा तो क्या होगा, 110 कूलम चार्ज में से जो 50 कूलम का चार्ज है वो क्या करेगा, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूटिलाइज कर लेगा। बाकी का जो बचा 60 कूलम का चार्ज, वो क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, अब हमारा पहला केस और दूसरा केस में डिफरेंस क्या है। पहले केस में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तो हमने 60 कूलम चार्ज डाला और 60 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। सेकेंड वाले केस में हमको सेम 60 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना था, बट उसके लिए हमने क्या किया, 110 कूलम का चार्ज डाला, तब जाके 60 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस इज दिस, व्हेन आई इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल between the two plates, the charge carrying capacity of the plate increases. The charge carrying capacity of the plate increases to generate the same amount of electric field. हाँ या ना, है ना। देखो जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं तो इसमें 60 कूलम चार्ज है, 60 कूलम की इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। सेकंड वाले केस में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, चार्ज इज मोर बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस, बट इट इज इक्वल टू द फर्स्ट केस। समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया है, दे कैन आस्क मी, ओके, दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड दे कैन आस्क मी if anyone has a doubt. Yes, yes guys. Yes सोनाली, आपको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सर ऐसा तुम ऐसे दांत में माइक डाल लोगी तो कैसे आएगा आवाज? ओके चलो ठीक है। और कोई है, किसी को डाउट है? यस आस्था, यू हैव एनी डाउट? इकरा, यस इकरा, अंसारी इकरा, यू हैव एनी डाउट? You can put it answer in the chat also if you want. Yes Sainath, you have any doubt? No one has doubts, and anyone has doubts they can say. Okay, ठीक है चलो, so let's move forward. Let's move forward then. Okay, so now everyone has seen capacitor. सबने कैपेसिटर देखा है क्या? जो आपके देखो फैन में लगा होता है ऊपर, फैन में ऊपर व्हाइट कलर का लगा रहेगा, देखा है कभी क्या? देखा है ना? यस और नो? क्या है, आप लोग का आंसर नहीं दे रहे हो? हाँ ठीक है चलो। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू generate a capacitor. अब हम लोग क्या करेंगे, we are going to generate a capacitor and we are going to see how the capacitor actually works. ठीक है, फाइन, ओके। सो देखो सबसे पहले व्हाट इज अ कैपेसिटर, व्हाट इज अ कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ कैपेसिटर। तो पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, कैपेसिटर। Write down, a capacitor is a device. A capacitor is a device arranged in the form of parallel combination,
parallel plates, sorry, not combination, arranged in the form of parallel plates or concentric shells, a capacitor is a device arranged in the form of parallel plates or concentric shells. Shells पता है ना, concentric shells, okay, in the form of concentric shells with a dielectric in between, जैसे ये यहाँ पे डायग्राम है ना हमारा, ये वाला डायग्राम, दो पैरेलल प्लेट्स है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, दो पैरेलल प्लेट्स है, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही कैपेसिटर ऐसा ही दिखता है, ओके। सो विथ अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन, used for storing charges, okay. देख लिया? Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब देखो, नाउ द कैपेसिटर का मतलब समझ में आ गया ना सबको, क्या करता है? तो कैपेसिटर का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर इज टू स्टोर चार्जेस, ओके, दैट इज द ओनली फंक्शन। क्या फंक्शन है? टू स्टोर चार्जेस। नाउ द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट क्या है कैपेसिटर का? लाइक टू मेजर द कैपेसिटी इज फैराड और फैराड, this is the unit, okay, this is the unit to measure the capacitance, like capacity of the capacitor, ठीक है। the dimensions for of the farad, dimensions लिख लो, इसके dimensions हैं m-1, l-2, t4, a2, these are the dimensions, okay. Yes, Mansi, you have any doubt? You can ask if you have any doubt. Okay. Yes, Sainath, Pranay, very Sarvesh. Okay. Done. Now let's see what is a capacitance now. Capacitor समझ में आ गया क्या होता है? Capacitor क्या होता है? It is used to store charges. Sir, what is concentric circles? अरे बाबा, concentric circles मतलब ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, कांदा देखा है ना, कांदा, सेम वही, ठीक है, कांदा कांदा, ओके। शेल्स, हाँ शेल्स, अभी मैं यहाँ पे शेल नहीं बना सकता ना इकरा, ठीक है, तो इमेजिन कर लो कि शेल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब कांदे जैसा, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ठीक है। स्टिल यू हैव अ डाउट इकरा? ओके, ठीक है। नाउ देखो कैपेसिटर क्या होता है? टू स्टोर चार्जेस। कैपेसिटर का फंक्शन क्या है? टू स्टोर द चार्जेस। नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो पहले देखो कैपेसिटर होता क्या है। अगर मेरे पास में दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? उसके अपोजिट वाले प्लेट के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, राइट? पता है ना हमको, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए क्या होगा? ऑटोमेटिकली बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। आपको याद है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा था, वी कैन जनरेट चार्जेस विद द हेल्प ऑफ वन, एक मेथड क्या था? ये सही बताओ, देयर वर 3 मेथड्स ना टू जनरेट चार्जेस। Induction, conduct, and इंडक्शन, और इंडक्शन तो मैंने बताया अभी, और कौन सा मेथड है? कंडक्शन, friction. हाँ कंडक्शन करेक्ट है, हाँ फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन लाइक रबिंग, एग्जांपल आपका एबोनाइट रॉड को अगर आपने सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किया तो
कंडक्शन वाला क्या, आपके पास में एक ऑलरेडी चार्ज्ड बॉडी है, उसको आप वायर से दूसरे अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट कर दो तो चार्ज हो जाएगा, वो दूसरा मेथड है। और थर्ड इज बाय इंडक्शन। इंडक्शन का एग्जांपल दे सकता है कोई? यस सोनाली। सोनाली माइक को थोड़ा नजदीक लाके बोलो, जो भी बोल रही हो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। टाइप कर दो फिर आंसर। और कोई आंसर दे सकता है क्या? यस, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंडक्शन? अमृता। यस अमृता। कैन यू गिव एन एग्जांपल? स्केल एंड पेपर। यस आस्था, वेरी गुड, स्केल एंड पेपर। ओके ठीक है। अगर वो स्केल एंड पेपर भी नहीं पता तो आपको पता होगा, बचपन में वो टीवी के पास अपना हाथ लेके जाते तो हाथ के ऊपर जो बाल थे वो ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं, है ना? पता है ना सबको? ओके ओके चलो, तो हम वही मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास में चार्जेस, अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? इट्स अ कैपेसिटी, राइट डाउन द फॉर्म, कैपेसिटेंस, it's the capacity of a conductor it's the capacity of a conductor to accumulate charge, to accumulate charge under a constant potential, under a constant potential. Okay, it's a capacity of a, what it's a capacity of a conductor to accumulate charge under constant potential. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे सपोज करो मेरे पास में एक प्लेट है। क्या है? आई हैव वन प्लेट लाइक दिस। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर मैंने चार्ज रखा। ठीक है, तो अब जब मैं इसके ऊपर चार्ज रखूंगा तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है ना, अगर चार्ज रहेगा तो उसके आसपास क्या रहेगा? पोटेंशियल रहेगा। याद है सबको? पोटेंशियल हमने पढ़ा था ना, याद है? इफ देयर इज अ चार्ज देन देयर इज अ पोटेंशियल। यस और नो? पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। याद है कि नहीं याद है? हाँ यस गाइस, पता है ना? तो अगर चार्ज है तो क्या रहेगा? पोटेंशियल रहेगा। तो ठीक है, तो हमने क्या बोला? इट्स द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, वो कितना चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है अपने ऊपर एक कांस्टेंट पोटेंशियल में। ठीक है, तो सपोज करो मैंने अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है वहां पे। ठीक है, चार्ज के ऊपर 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया मैंने, तो 10 वोल्ट की बैटरी पे वो अपने ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है? 10 कूलम एक्यूमुलेट कर सकता है, 20 कूलम कर सकता है, 30 कूलम कर सकता है, 300 कूलम कर सकता है। कितना कर सकता है? वो जितना कर पाएगा वही उसकी क्या रहेगी? कैपेसिटी रहेगी, या फिर उसका कैपेसिटेंस रहेगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझे। जैसे सपोज करो आप लोग 10 स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड में थे, राइट? अभी आप लोग पास होके 12th में आ जाओगे, है ना? यस और नो? है ना? अच्छा, तो अभी आपने आपके पूरे 11 स्टैंडर्ड में सब कुछ पढ़ा, है ना? पढ़ा ना, मतलब जो ओमिट हो गए थे उसको छोड़ के, जो बाकी का 70% पोर्शन सब कुछ पढ़ा आपने, सबने पढ़ा? यस और नो? यस। अच्छा, तो जब पढ़ा आप लोगों ने तो आपने उसमें से कितना एक्यूमुलेट कर पाए? पूरा का पूरा एक्यूमुलेट कर लिए क्या? सब कुछ याद है क्या आप लोगों को? ऐसे कोई होंगे जिसको कुछ नहीं याद होगा, और ऐसा कोई होगा जिसको सब कुछ याद होगा, पर बीच में ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको आधा आता होगा आधा नहीं आता होगा, है ना? यस और नो?
Yes. यस सर। तो फिर वो क्या हो गया, आपके वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी हो गई ना, किसी की कैपेसिटी ज्यादा है तो उसने ज्यादा पढ़ा है तो उसको ज्यादा याद है, तो उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। और जिसने कम पढ़ा होगा, मतलब या फिर जिसको कम याद रहेगा, तो मैं बोलूंगा उसका कैपेसिटी कम है, वो कम होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो भले ही देखो मैंने पढ़ाया सबको इक्वल है, सबको मैंने सेम पढ़ाया है, मैंने सबको सेम पोटेंशियल दिया, बट लोगों ने एक्यूमुलेट कितना किया, अलग अलग किया, किसी ने 10 किया, किसी ने 20 किया, किसी ने 30 किया, किसी ने पूरा का पूरा कर लिया। समझ में आया कैपेसिटेंस और इसका रिलेशन? समझ में आया व्हाट इज कैपेसिटेंस नाउ? ठीक है, तो कैपेसिटेंस इज व्हाट, इट्स अ कैपेसिटी टू एक्यूमुलेट चार्ज अंडर कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट्स अ कैपेसिटी टू एक्यूमुलेट चार्ज अंडर कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस C इज गिवन बाय Q अपॉन V, वेयर Q इज द चार्ज, V इज द पोटेंशियल। ये हमारा फॉर्मूला है किसका? कैपेसिटेंस का, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। डज एनीवन हैज अ डाउट? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? No, sir. ऑल क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया ना कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटी क्या होता है, मतलब कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस क्या करता है? वो उसकी बताता है कि वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। अभी यूनिट क्या है कैपेसिटर का? व्हाट इज अ यूनिट? हम लोग मेजर किस में करते हैं? उसको मेजर हम लोग फेराड में करते हैं। किससे मेजर करते हैं? फेराड। नाउ व्हाट इज 1 फेराड? 1 farad is equals to 1 coulomb per volt. What is 1 farad? 1 farad is equals to 1 coulomb per volt. ठीक है, बट नाउ 1 farad is a very big unit. 1 farad आप देखोगे तो इट्स अ वेरी बिग यूनिट। हु इज दिस यश दीक्षित? बार बार आ रहा है जा रहा है, कौन है ये? एवरी टाइम। ओके, सो या नाउ 1 फेराड जो है, 1 फेराड इज अ वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी देखोगे, आपका अगर फैन का कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो उसके अंदर देखो लिखा रहता है, उसके ऊपर वैल्यू लिखा रहता है, ठीक है, कितना फेराड है वो। तो आप देखोगे तो इट इज यूजुअली 3.3 टू 3.5। बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? जल्दी बताओ ये क्या है? क्या है ये क्या है? जल्दी बताओ, ये किसका सिंबल है? Mu. म्यू, अच्छा। हाँ म्यू, ओके। नहीं बट इसको बोलते क्या है, चलो ये बताओ। माइक्रो। या करेक्ट, माइक्रो। सो आपके फैन में जो कैपेसिटर होता है उसका वैल्यू इसके रेंज में होता है, 3.3 टू 3.5 माइक्रो फेराड, ठीक है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला 1 फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो यूजुअली जो कैपेसिटर्स हमारे पास आसपास जो भी होते हैं कैपेसिटर्स, उसका यूनिट क्या होता है? इट इज इन द रेंज ऑफ 1 माइक्रोफेराड, या फिर 1 नैनोफेराड, या फिर 1 पिकोफेराड, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू पावर -6, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू पावर -9, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू पावर -12। ओके, समझ में आया? समझ में आया? एनी डाउट? एनी डाउट? सर रिपीट अगेन। क्या रिपीट करूं? जो 1 यूनिट फराड था हाँ लास्ट। देखो, 1 farad is basically very big unit, ठीक है। So we don't write 1 farad because it's a very big unit, so we have a very smaller units for farad, that is 1 microfarad, 1 nanofarad and 1 picofarad। 1 माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6 होता है, नैनो मतलब 10 टू पावर -9 होता है, पिको मतलब 10 टू पावर -12 होता है, ठीक है। ओके, यस सर। चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट।
अभी हम थोड़ा देखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, कैपेसिटर का। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बनेगा, जल्दी बताओ। नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। तो अब मुझे कौन बताएगा, ये वाले प्लेट के ऊपर, लेट्स से ये वाला प्लेट ए है और ये वाला प्लेट बी है, ओके ठीक है। सो प्लेट ए के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, प्लेट ए के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है प्लेट ए के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल कैसा रहेगा इसके ऊपर, सोनाली जब तुम बोलती हो ना तो माइक को मुंह के पास लेकर आया लेकर बोला करो, थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है। ओके कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, तो मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली प्लेट बी के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, यस आस्था, नेगेटिव। वेरी गुड, हाँ नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा। अच्छा अब चलो मुझे ये बताओ, तो जब मैं इसका प्लेट ए का जो कैपेसिटेंस रहेगा, प्लेट ए का जो कैपेसिटेंस रहेगा वो क्या रहेगा, C इज इक्वल्स टू Q पॉजिटिव अपॉन B पॉजिटिव, राइट, यस और नो, Yes, sir. ओके नाउ तो मैं इसको C पॉजिटिव बोल देता हूं। सिमिलरली C नेगेटिव के ऊपर क्या रहेगा, Q नेगेटिव चार्ज अपॉन B नेगेटिव चार्ज, यस और नो, क्लियर है सबको। अच्छा क्या क्या Q पॉजिटिव विल बी इक्वल टू Q नेगेटिव और Q पॉजिटिव विल नॉट बी इक्वल टू Q नेगेटिव, बताओ मुझे क्या आंसर आ सकता है। यस श्रेया, श्रेया कैन यू टेल मी, सर you have muted yourself Shreya, please unmute yourself, correct Harsh, you can answer in the chat, Shreya you can answer in the chat if you would like. Sir, can you repeat the question? The question is whether Q positive will be equal to Q negative or Q positive will not be equal to Q negative in the above case where plate A is positively charged and plate B is negatively charged. Correct Laya, very good. Yes, बाकी लोग, इकरा, यस श्रेया जल्दी बताओ, बोर्ड का क्वेश्चन है। I think the second one is the answer. Okay श्रेया, नो श्रेया, ठीक है, यहाँ पे जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज यहाँ पे भी रहेगा, ऑटोमेटिकली इंड्यूस होगा, ठीक है। ओके सो आंसर विल बी द फर्स्ट वन, Q पॉजिटिव विल बी इक्वल टू Q नेगेटिव, ठीक है। ओके so now Q positive will be equal to Q negative, since that is the case, so इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ C positive will be equal to C negative, yes or no, Yes, sir. correct, okay now अगर अब मैंने क्या किया, अब देखो, अच्छा जब ऐसा केस है तो इसका मतलब क्या हो गया, V पॉजिटिव विल बी इक्वल टू V नेगेटिव,
खाली मतलब क्या है, पोटेंशियल एक पॉजिटिव रहेगा, एक पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा, बट द मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, है ना। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, विच इज इक्वल टू v। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v विल बी इक्वल टू v प्लस माइनस v माइनस, दोनों के बीच का पोटेंशियल, है ना। ओके, पोटेंशियल में चार्ज वाइज जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेट्स से दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। अब मैंने क्या किया, अब देखो मैंने क्या किया, सेकंड केस है, ध्यान से देखो। Again, this is a positively charged plate. This is a negatively charged plate. ठीक है, इसको मैं P1 बोल देता हूं. I call this as P2. ठीक है. Now what I am going to do over here is I am going to connect it to here. Now tell me what is this? ये क्या है? जल्दी बताओ कौन है? बैटरी है. वेरी गुड. हाँ, क्या है? जल्दी बताओ क्या है ये? जो बताया उसको मेरी तरफ से 1 मार्क्स एक्स्ट्रा इन द पेपर. हाँ, की चाबी है. अरे दिशा, कैसे चाबी लग रही है? अर्थिंग. कौन बोल रहा है अर्थिंग? किसने बोला अर्थिंग? अरे अब आंसर बोल के बोल भी नहीं रहे हो, किसने बोला अर्थिंग? अच्छा, आस्था आपने बोला. करेक्ट आस्था. ठीक है, तो दिस इज अर्थिंग. ठीक है. अब बैटरी जिसने बोला था, भाई बैटरी नहीं है, दिस इज अर्थिंग. अर्थ का, ये ग्राउंड का सिंबल है. ठीक है, ग्राउंड का सिंबल है ये. ओके. अच्छा, अब चलो मुझे बताओ, अगर ये अर्थिंग है, ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको 2 मार्क्स. यस लाया. 0 सर. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा? 0. ओके, इवन दो यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव है, बट मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या v प्लस इज इक्वल टू v माइनस? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? नो. करेक्ट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है. बट क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, v इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस v माइनस? ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं 0 में से किसी चीज को माइनस कर सकता हूँ ना. मैं 0 माइनस 1 इज व्हाट? -1 ना. या फिर 1 माइनस 0 इज व्हाट? 1. यस और नो गायत्री? है ना. ओके, चलो ठीक है. ओके, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में v इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस v माइनस. अब सपोज करो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है. क्या निकालना है? ध्यान सुनो, मैं क्या निकाल रहा हूँ? कैपेसिटेंस. तो मैं बोलता हूँ लेट, अच्छा येलो कलर है तो हम इसको येलो कलर से लिखते हैं. लेट C be the capacitance of this capacitor where this will be equal to Q upon the potential difference between the two plates. So that will be equals to V plus minus V minus. Now here in this case, second case में क्या होगा? यहाँ पे अगर C is the capacitance of this circuit, like of this combination, so C will be equal to Q upon V plus minus V minus. But we know that V minus is equal to 0 because it is grounded. Therefore, C is equals to Q upon V plus. Now, see, these things are not there in your textbook, and this concept is very important from JEE and NEET point of view. So, if you are not understanding, ask me, and if you are clear, do let me know so that I can proceed forward. Okay. Does anyone has the doubt up till here? Concept समझ में आ रहा है सबको? So can you Concept repeat? can I what should I repeat? Can you tell me? Second point, ये वाला, ये ऑरेंज वाला. Yes. देखो, हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये वाला जो प्लेट 2 है वो क्या है? इट इज ग्राउंडेड. ये ग्राउंड का सिंबल है. ठीक है.
अगर ये ग्राउंडेड है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो मतलब ये V 0 है, मतलब V माइनस 0 है। ठीक है, अभी हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखा है, क्या फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बट V क्या होता है, V क्या होता है, V प्लस माइनस V माइनस होता है। बट हमने क्या बोला, जब यहाँ पे V 0 है तो मतलब V माइनस 0 है, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में पुट किया और फाइनली ये V माइनस को 0 पुट कर दिया, तो V प्लस माइनस 0 इज V प्लस। तो मुझे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिल गया, ये वाले केस में C इक्वल्स टू Q अपॉन V प्लस। ये वाले केस में क्या है, ये वाले केस में कोई भी प्लेट ग्राउंडेड नहीं है, सिंस बोथ प्लेट्स आर नॉट ग्राउंडेड, देयरफॉर द कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस। क्लियर? Still you have a doubt, you can ask me. Anyone has a doubt, they can ask me. No doubts or doubts? Jaldi batao. Is it No, clear? sir. Okay, fine. So now let's go to the next topic called as combination of capacitors. अभी देखो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था, इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। याद है आप लोगों को, याद है? याद है क्या? देखो हम लोग रजिस्टर को क्या करते हैं, सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वी कनेक्ट द रजिस्टर इन सीरीज पैरेलल। ठीक है, सो देखो ये मेरा कैपेसिटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का, दिस इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, नाउ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन विच वी आर गोइंग टू सी इज अ सीरीज। ओके, चलो बिफोर दैट आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, ओके चलो साइनाथ, साइनाथ अनम्यूट योरसेल्फ। साइनाथ इज नॉट देयर। ओके, दिशा, दिशा सर ब्लू कलर इज नॉट विजिबल। ओके ठीक है अमृता, थैंक यू फॉर द फीडबैक। ऊपर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लिखा है अमृता, ठीक है, ब्लू कलर में। यस लाया, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. Okay, can you tell me what is the formula for the equivalent resistance for resistance in series? दीवार पे आंसर है, जल्दी बताओ। अरे रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या है? R1 plus R2 plus R3. करेक्ट, R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल Rn, जितने भी हैं। ठीक है, ओके। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि जब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं? कोई बता सकता है? चलो कौन बताएगा? जो आंसर बताएगा वो उसको मैं नेक्स्ट टेक्स्ट, उसका नेक्स्ट टेस्ट मार्क्स, उसको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो आंसर बता दिया उसको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, फुल मार्क्स में बोल के फुल मार्क्स दिला दूंगा। ठीक है, बट मुझे खाली इसका आंसर बता दो कि क्या असम्पशन होता है व्हेन यू डू अ डेरिवेशन फॉर दिस। यस मानसी, मोनालिका, कैन यू Sir, अनम्यूट योर? repeat the question. अच्छा रिपीट द क्वेश्चन, चलो ठीक है। सी द क्वेश्चन इज व्हाट इज द assumption वी डू when we are finding out resistance in series? What is the assumption? Not assumption, we say like what we take the condition. In a circuit. Say I can see you, your video is Sir, on. I said that means like
Sir, in a circuit, you take resistance like that only you are asking, no? आई एम आस्किंग व्हाट इज द कंडीशन। चलो ठीक है, छोड़ो, मैं बताता हूँ। आप अब सबको आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा एनीवेज। चलो देखो क्या है। देखो, व्हेन यू टेक अ रेजिस्टेंस इन सीरीज, so our condition is, since the resistance in series, the current is constant। हाँ या ना, याद है? करंट कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? हम लोग जब अजम्पशन लेते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है। नहीं याद है तो बाद में क्या करना, 11th का नहीं 12th का, सॉरी 10th का टेक्स्ट बुक खोलना, ठीक है? उसमें देखो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा कांस्टेंट होगा, ठीक है? ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया होगा, ठीक है? नीचे बैटरी बनाया होगा, ऐसा कुछ होगा डायग्राम। याद है किसी को? हाँ, नहीं याद है? याद है, चलो ठीक है। तो याद है तो फिर आंसर क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? ठीक है, ओके। तो अब हम यही सेम कंडीशन यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में, ओके। और हमको क्या निकालना है यहाँ पे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है? तो क्या होता है हमको वो निकालना है, इक्विवेलेंट। ठीक है, एवरीवन इज रेडी? ओके। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो हम तीन ही कैपेसिटर ले रहे हैं। लेट्स से दिस इज कैपेसिटर C1, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। इसके ऊपर पोटेंशियल V1 है, इसके ऊपर पोटेंशियल V2 है, इसके ऊपर पोटेंशियल V3 है। मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब चलो, कौन मुझे आंसर बताएगा? अब बताओ इससे आगे मैं क्या करूं? यस आस्था, आस्था। हाँ बताओ मुझे क्या करना चाहिए इसके आगे, मुझे मैं क्या कांस्टेंट रखूं यहाँ पे, बताओ मुझे। व्हाट शुड आई कीप कांस्टेंट? यस अमृता, करेंट, ओके, वेरी गुड। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, इतने हम लोग कैपेसिटर कितने घंटे से पढ़ रहे हैं? कितने घंटे से कैपेसिटर पढ़ रहे हैं? करेक्ट आस्था, अच्छा, स्मार्ट, ठीक है, ओके। पोटेंशियल नहीं नहीं प्रणय, पोटेंशियल तो मैंने V1 V2 V3 रखा है ना। अगर कांस्टेंट होता तो मैं VV लिखता ना प्रणय। हाँ या ना? है ना? चलो कौन बताएगा? यस श्वेता, सोनाली, नहीं नहीं सोनाली, श्वेता, आर यू देयर? नॉट देयर। भक्ति, भक्ति मात्रे, Sir, अरे बाप रे। तुम्हारा नेटवर्क का इशू है क्या? कैन यू टेल व्हाट शुड आई कीप कांस्टेंट? हाँ श्वेता बताओ, व्हाट इज द थिंग शुड बी केप्ट कांस्टेंट, श्वेता? नो भक्ति, एंड यू आर सेंडिंग इट टू एवरीवन, सेंड इट टू मी। तुम आंसर लीक कर दोगी ऐसे? रेजिस्टेंस नहीं बाबा, यहाँ पे कहाँ रेजिस्टेंस आएगा? यहाँ पे तो कैपेसिटर है। साइनाथ करेक्ट है, श्वेता नो, श्वेता, आदित्य नो, साइली गलत है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कीप कांस्टेंट इज Q, चार्ज। कैपेसिटर में से करंट नहीं फ्लो होता है, देखो करंट वायर तक आएगा, खाली यहां तक ही वायर करंट आएगा। अब कैपेसिटर में क्या रहेगा? कैपेसिटर में आएगा चार्ज। तो सिंस करंट कांस्टेंट रहेगा वायर के अंदर, तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? ओके, तो चलो अब हम देखते हैं। सो लेट्स से मैंने टोटल पोटेंशियल जो बैटरी का है V is divided among these capacitors as V1 plus V2 plus V3, ठीक है? V जो टोटल पोटेंशियल था वो तीन कैपेसिटर्स में डिवाइड हो गया इन द फॉर्म ऑफ V1 plus V2 plus V3।
ओके, नाउ हमारा जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या होता है, उसके हिसाब से देखो, अगर आप देखोगे तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू Q बाई सी, यस और नो, V इज इक्वल्स टू Q बाई सी, है ना, क्योंकि देखो Q इज इक्वल C इज इक्वल्स टू Q बाई B होता है ना, इसकी वजह से तो मैंने खाली उल्टा कर दिया। तो और V1 क्या होगा, V1 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 क्या होगा, Q अपॉन C2, V3 क्या होगा, Q अपॉन C3, राइट। अच्छा, अब कोई मुझे यहाँ बता सकता है कि मैंने यहाँ पे Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिया? Because it is Because they are quantum. same. हाँ, They are same. दे आर सेम, वेरी गुड। अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू चेक आप लोग हो कि नहीं मेरे साथ में, ठीक है, ओके, क्योंकि दे आर सेम बिकॉज Q कांस्टेंट है इसकी वजह से। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव, देयरफॉर टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता है, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3, तो मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एक काम करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ Q बाई C इक्वल्स टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, Q कट गया, सो मुझे क्या मिला, 1 अपॉन C, विच इज C इक्विवेलेंट बोलता हूं मैं इसको, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। तो अगर मैं कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसा हो जाता है। तो बताओ ये वहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, जल्दी बताओ। वेरी गुड आस्था, कौन क्या increase इंक्रीज, ओके वेरी गुड, कौन था ये, प्लीज नेम योर सेल्फ इन द चैट बोलना, ठीक है, चैट में अपना नाम बताओ। प्रणय, वाज इट यू, और साइनाथ, आदित्य, ओके, कौन है आदित्य, ओके, नाम तो बता दिया मैंने, लीक कर दिया, ओके भाई, इट डिक्रीजेस, इट डज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है, रेसिप्रोकल है, पैरेलल में है तो चीजें कम होती है पैरेलल में, बढ़ती नहीं है, ठीक है, ओके ओके आदित्य, ठीक है, इट इज इन पैरेलल देयरफॉर इट विल डिक्रीज, ठीक है, पर अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा बताओ, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस सीरीज में डिक्रीज होता है। Decrease. अमृता, आई कैन सी यू आर लाफिंग अ लॉट, नेक्स्ट इज यू, okay, so resistance when it is in series it increases, when capacitors are in series it decreases, clear हो गया ये सबको। now let's go to the next combination, okay, so next combination हमारा क्या होता है, अच्छा यहाँ पे एक और छोटा सा एक फॉर्म है, छोटा सा ट्रिक मैं लिख देता हूं, ठीक है, अगर अगर if all the capacitors in series are same, then C equivalent is equal to C upon N, where N is number of capacitors, ठीक है, अगर मैं बोलूं C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 है तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, किसी को डाउट है, does anyone has a doubt, okay, चलो फिर हम लोग let's go to the next question, sorry next topic,
sir, can you show previous page? हाँ हाँ देख लो। ओके चलो, now next topic is capacitors in parallel. Okay, capacitor in parallel. Okay, so initially we did series, now we are going to connect the capacitors in parallel with a constant potential. So you have one capacitor, then you have another capacitor, and then you have another capacitor. So you have three capacitors. They are connected in parallel with a battery. अब चलो बताओ मुझे पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है? यस सही। V हाँ श्वेता, potential. पोटेंशियल। ओके, हाँ भक्ति, आस्था, अमृता, हर्ष, आदित्य, नेहा, जल्दी जल्दी आंसर करो। मलविका, आंसर बोलो, आंसर फटाफट, हम वेटिंग। भक्ति नहीं, सर वोल्टेज, सर नहीं वोल्टेज है। हाँ आशा करेक्ट है, आस्था करेक्ट है, श्वेता करेक्ट, अमृता गलत, दिशा करेक्ट। Okay, so the voltage remains constant in parallel. What remains constant? Voltage. ठीक है, याद रखो क्या कांस्टेंट होता है? V is constant. Okay, so since voltage is constant, so let Q is, अच्छा ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है. So let Q is the total charge. Q1, Q2 and Q3 is the charge on capacitor C1, C2 and C3. Okay. Therefore, what do we get? We get Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Okay. Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. यहाँ से चार्ज कितना गया टोटल? Q गया, इसके ऊपर चार्ज कितना है? Q1 है, इसके ऊपर कितना है? Q2 है, इसके ऊपर कितना है? Q3 है। तो मतलब Q चार्ज किसमें हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1, Q2, Q3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैं बोलूंगा टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब मुझे पता है Q क्या होता है। Q इज इक्वल्स टू CV होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला था ना वही नॉर्मल वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और क्या हो जाएगा? Q1 विल बी इक्वल टू C1V, Q2 will be equals to C2V and Q3 will be equals to C3V. Okay, so let's substitute them. So after substituting, what do we get? CV equals to C1V plus C2V plus C3V. V कैंसिल हो जाएगा। देखो मुझे क्या मिलता है? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. Now if
all the Ca capacitors are same, then C equivalent is equals to N times C. N क्या है? Number of capacitors. Okay. Anyone has a doubt? If anyone has a doubt, they can ask me. पहले लिख लो, ठीक है? First write down, and then if you have a doubt, ask me. ओके प्रथम, देखो यहाँ पे क्या है, चार्ज क्यू गया बैटरी से, ठीक है? ये चार्ज तीनों कैपेसिटर्स में डिवाइड हो गया, Q1, Q2, Q3 के फॉर्म में। तो टोटल चार्ज Q गया, वो कितने फॉर्म में डिवाइड हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मतलब ये तीनों चार्ज को मैं मिला दूंगा तो दैट इज Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने इसलिए लिखा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखा। नाउ Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV होता है। ये कहाँ से आया? ये हमारा फॉर्मूला यहां से आया, यहां से, ठीक है? यहां से ये फॉर्मूला आया। नाउ Q इज इक्वल टू CV लिखा, Q1 के लिए क्या हो जाएगा? C1V हो जाएगा, Q2 के लिए क्या हो जाएगा? C2V, Q3 के लिए C3V। अब यहाँ पे सब जगह VV क्यों लिखा है? क्योंकि V कांस्टेंट है। अभी ये वैल्यूज जो है मैं ये ऊपर वाले इक्वेशन में लिखा, इसको सॉल्व किया, जो VV था वो तो कट गया, तो C इक्विवेलेंट क्या आया? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मतलब अगर मैं कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मेरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ऐड होगा, इंक्रीज होगा। सीरीज में कनेक्ट करने पे वो डिक्रीज होगा। ओके प्रथम, स्टिल यू हैव अ डाउट? ओके, डन? एवरीवन इज डन विद दिस? Sure. Okay, chalo then. Write down one question. Write down one question. Everyone is ready? सब लोग ready है ना? ठीक है? So write down the question. When 10 to power 8 electrons, when 10 to power 8 electrons are transferred from one conductor to another, when 10 to power 8 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volts appear between the conductors, find the capacitance of the two conductors. Find the capacitance of the two conductor. समझ में आया क्वेश्चन? आपको क्या ढूंढना है? C ढूंढना है। And guys, don't switch off your cameras. I would be happily like to see your faces. ठीक है? Okay. See, it's an online lecture. I miss you guys, so I want to see you. ठीक है? तो प्लीज अपने अपने कैमरास को ऑन रखो। ओके एवरीवन? ओके यस, क्या हुआ है आपके कैमरास को? सबके कैमरास क्यों बंद है? हाँ,
ओके, चलो टेल मी द आंसर फटाफट फटाफट फटाफट। कैसे करोगे क्वेश्चन, सबको समझा ना? डन हो भी गया, कर लिया सोनाली सॉल्व? क्या बात है, सॉल्व कर लिया क्या आप लोगों ने? सॉल्व किया कि मैं करूं सॉल्व? हाँ, सॉल्व कर लिया? यस लाया? सॉल्व कर लिया? No, प्रणय sir. सॉल्व कर पा रहे हो क्या? देखो हमको सी ढूंढना है, क्या ढूंढना है? सी। हमको वी दिया गया है, ठीक है, हमको क्यू निकालना पड़ेगा। क्यू हम कैसे निकालेंगे? हमको चार्ज दिया गया है, दिया गया है चार्ज। हाँ, कितना दिया है चार्ज? 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स बोला है, 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स बोला है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आस्था? जल्दी बताओ आस्था। 1.602 into 10. हाँ 1.602, आगे क्या है? पावर भी है उसको। 10 raised to हाँ minus 10⁻⁻19, 19. ठीक है, हाँ करेक्ट। -19 आस्था, हाँ माइनस भूल गई तुम। हाँ हाँ दिख रहा है। ओके चलो, सो फटाफट तो आप पहले Q निकाल लो। Q क्या होता है? Q विल बी इक्वल टू n टाइम्स E, ठीक है। n इज आपका 10⁸8, E आपको पता है अभी, तो n टाइम्स E हो जाएगा। आपको V दिया गया है, आपको C निकालना है, ठीक है। प्रणय आंसर आ गया क्या? तो क्यों बैठे हो, सॉल्व करो। यस आशा, आर यू एबल टू सॉल्व? ओके ठीक है, चलो करो फटाफट फिर। वैष्णवी आपको आ रहा है क्या? Sir, we have to use the formula of like C is equal to Q by charge by V. हाँ, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, वही So फॉर्मूला यूज करना है। difference, so we have to just, oh yeah. यस वैष्णवी, आर यू गेटिंग? वैष्णवी आई कैन नॉट सी यू। वैष्णवी ओके सर, आई टोल्ड मैम। ओके ठीक है ठीक है। ओके आशा यू गॉट 1 पॉइंट, ओके वेरी गुड। तुमने पावर, पावर हाँ पावर बराबर लिखा है। पावर, एक मिनट रुको, नहीं तुम्हारा पावर में गड़बड़ है आशा, चेक करो। Sure. हाँ Sir, it's 1.602 into 10 raised to minus 12. नहीं, -12 तो नहीं है। हाँ हम एक मिनट, नहीं नहीं, मैं सॉल्व करूँ क्या? लेट मी चेक, आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। So the same I am getting like -12 आ रहा है. ओके -12 ही आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है, रुको मैं सॉल्व करता हूँ एक बार। Q is equals to n times E, which is 10⁸8 into 1.602 into 10⁻⁻19। तो ये क्या हो जाएगा? 1.602 into 10⁻⁻11, करेक्ट?
और हमको C निकालना है। C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है 1.602 इंटू 10⁻11 अपॉन 10। हाँ, तो इट विल बिकम 1.602, हाँ बराबर 10⁻12। ओके, बुक में गलत आंसर है फिर, फराड। तो ये कितना फराड है? 1.602 पिको फराड है ना, पिको ना, यहाँ है ना, पिको ना 10⁻12। ओके चलो, अभी हमें ना एक और करते हैं, ये वाला थोड़ा अच्छा सा है। ओके ओके, अब देखो मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, अभी आपको क्या करना है, इस सर्किट का ना इक्विवेलेंट ये निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। सर सो द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके जल्दी देखो फटाफट, प्रीवियस क्वेश्चन तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने डिक्टेट किया था क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो प्रथम फटाक से। ओके चलो, अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास में ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, फिर एक और कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, और ये ऐसा है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट, ठीक है। सबके सब सी है, सबके सब, ये सबकी वैल्यूज है ना, सबकी वैल्यूज सी ही है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्या करना है, देखो ये सीरीज पैरेलल वाला आपको कंसेप्ट यूज करना है, सीरीज पैरेलल का, ठीक है। आपको हेल्प चाहिए क्या? Sir, what you said, C is सी, सबकी वैल्यू सी है, सबकी वैल्यू सी है। ओके, तो फाइनल आंसर सी के टर्म्स में आएगा। हेल्प चाहिए क्या आपको? हिंट चाहिए क्या? हिंट, डू यू गाइस नीड हिंट? ओके चलो ठीक है, देखो मैं ये वाला पार्ट है ना आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये वाला पार्ट। I didn't understood the question. Can you repeat? सी द क्वेश्चन इज बेसिकली, दिस इज अब कैपेसिटर का कनेक्शन है, and here what you have to do is you have to find out the equivalent capacitance between point A and B. Okay, between point A and B you have to find out an equivalent capacitance. Okay, now I am solving only this part, the rest of the part you have to solve. ठीक है, so I am just marking this much. अब मुझे बताओ, ये पार्ट देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे से टच है। जैसे लेट्स से इसको मैं बोलता हूं O और इसको बोलता हूं C, OC एक ही पॉइंट है, यस और नो? OC एक ही पॉइंट है क्योंकि देखो वायर एक ही है ना। तो मैं OC को एक पॉइंट बोल देता हूं OC, मतलब एक पॉइंट बोलता हूं, उसको मैं बोल देता हूं OC। सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलता हूं D, तो D भी एक पॉइंट है। अब देखो OC और OD के बीच में क्या है, कैपेसिटर कैसा कनेक्टेड है? कैसा कनेक्टेड है कैपेसिटर? जल्दी बताओ। parallels, पैरेलल parallel कनेक्टेड, combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट कितना रहेगा, इसका इक्विवेलेंट कितना रहेगा पैरेलल 1 में? by C. Oh, sorry, C1 plus C. हाँ, C1 प्लस C2 पैरेलल है ना, ध्यान से। रेजिस्टेंस है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। देखो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखा है मैंने, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये वाले कैपेसिटर का, इतने कैपेसिटर का वैल्यू कितना आएगा 2C, राइट, सिर्फ इतने पार्ट का। अभी देखो ये 2C किसके साथ में कनेक्टेड है, ये वाले कैपेसिटर के साथ में कनेक्टेड है ना। कैसे? जैसे ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये 2C वाला कैपेसिटर है,
फिर यहां से देखो, ये बताओ ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? देखो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि नहीं किया? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में है ना, ये वाला पार्ट, Yes. ये सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा बताओ? 1 by C. 1/c निकालो, इसका इक्विवेलेंट क्या आता है? फॉर्मूला मैंने दिया था ना, C/n ना। Yes, sir. C upon N. तो कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं यहाँ पे सीरीज में, यहाँ पे कितने हैं? 2. तो क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट? करेक्ट सोनाली, C/2। इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C/2। तो ये क्या हो जाएगा? C/2। अब बताओ ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? ये वाले Parallel. पैरेलल में कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? एक है क्या 1/2C, दूसरा है 1/C। ठीक है, तो इसका निकालो क्या होगा C इक्विवेलेंट। इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 3/2C। तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C/3, है ना? यस और नो? समझ में आया ये वाला, ये कैसे किया मैंने? किसी को डाउट है क्या इसके अंदर? C इक्विवेलेंट, इसका जो C इक्विवेलेंट है वो कैसे, कितना आया? 2C/3। किसी को डाउट है इसके अंदर? if they have a doubt, ask me right now. Yes guys, see, I have to ask you कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, that is not my job, still I'm doing it. So if you are not doing your job, so I'll simply teach and I'll move on. I won't ask also कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. I hope आपको समझ में आ रहा है. I'm moving forward then. Yes, sir. ठीक है, तो ये कितना है? 2C/3 है. ठीक है, now if you see this and this, they are in parallel. अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम कौन सा, ये पॉइंट देखो, ये पैरेलल में है. ऐसा 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 सर्किट है ना, देखोगे तो ये है 2C/3 का, और नीचे है C/2 का, ऐसा सर्किट है. ठीक है, तो ये पैरेलल में है, तो इसको सिंपली ऐड कर दूंगा मैं, 2C/3 प्लस C/2. अगेन इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3. तो ये क्या हो जाएगा? 4C/6 प्लस 3C/6 विच इज इक्वल्स टू 7C/6. तो ये इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 7C/6 प्लस C है, तो ये क्या हो जाएगा? C and this is again my 7C/6. ठीक है, ये मेरा पॉइंट A था, ये मेरा पॉइंट B है, तो क्या हो जाएगा? 1/C प्लस 6/7C. ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ये मेरा 1/C इक्विवेलेंट है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13/7C. तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 7C/13. किसी को डाउट है? किसी को डाउट है क्या इसके अंदर? आई होप आपको समझ में आ गया. इफ यू गाइस वोंट आस्क, यू वोंट बज, तो मैं क्या करूं? आप लोग बता ही नहीं रहे हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. समझ में आया क्या? बताओ फटाफट, जल्दी बताओ. यस, मानसी आपको समझ में आया क्या? यस मानसी, कैलकुलेशन फिर से बताओ, कौन सा कैलकुलेशन? आशा, हाँ आस्था, कौन सा कैलकुलेशन? सर जो ग्रीन पे है, ग्रीन पे है, ग्रीन पे ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट का कैलकुलेशन.
ये वाला ग्रीन कलर वाला, देखो यहाँ पे क्या थे, 2 कैपेसिटर थे ना, यहाँ पे 2 कैपेसिटर थे ना, कुछ ऐसा था ना, ये सी था, राइट। तो क्या होता है, सॉरी सी था ना, नहीं 2C था, सी था या 2C था, यहाँ पे 2C था क्या, नो नो, यहाँ पे सी, ये 2 था, हाँ, बराबर है। तो ये दोनों सीरीज, मतलब यहाँ पे सीरीज में है, तो फॉर्मूला क्या है सीरीज का, 1/2C प्लस ये क्या है, जो भी वैल्यू है, ठीक है, 2 अपॉन, ये वैल्यू भी बता सकते हैं मुझे कितना है, ये 2C एंड C, ओके। यहाँ पे ये हमारा, ये 2C है, ओके, और ये C है, ठीक है, ये वैल्यू 2C है, ये C है। अभी देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना। तो 1/C1 प्लस 1/C2 क्या है, मतलब 1/C1 क्या है, ये है, ठीक है, मैं इसको वापस सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/C प्लस 1/2C, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या किया, एलसीएम ले लिया, इसको एलसीएम लेने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2C, 3/2C। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/2C, तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2C/3। समझ में आया क्या ये वाला पार्ट, आस्था, ठीक है। तो इतना पार्ट क्या हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, देखो ये इतना पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट कितना हो गया, 2C/3। ये वाला पार्ट क्या है, C/2 है, देखो मैंने वही किया है यहाँ पे, 2C/3 एंड C/2 दिख रहा है, दिख रहा है आस्था, Yes. 2C/3 एंड C/2 दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है। अभी दोनों पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, ऐड करते हैं हम दोनों को, है ना। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, खाली मैंने एलसीएम ले लिया है। आपको अगर एलसीएम लेना आता है तो, अगर नहीं आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आपको आंसर 7C/6 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2C/3 प्लस Sir, C actually, I am not getting the diagram. Can you explain विच डायग्राम, it? Which you have drawn? अरे कौन से कलर का, येलो ग्रीन ऑरेंज, 3 कलर के डायग्राम है, कौन सा डायग्राम नहीं समझ में आया, Green. ग्रीन कलर का, क्या नहीं समझ में आया ग्रीन कलर में, बताओ जरा मुझे, कौन सा पार्ट नहीं समझा, C/2 वाला पार्ट नहीं समझा, C वाला पार्ट नहीं समझा, 2C वाला पार्ट नहीं समझा, कौन सा पार्ट नहीं समझा। So that's C and 2C. अच्छा मुझे बताओ C और 2C कैसे कनेक्टेड हैं, Series. सीरीज का फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, 1/C. 1/C फॉर्मूला है, जाओ चेक करो जरा, बताओ मुझे क्या फॉर्मूला है, अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, चेक करो, मैंने लिखाया है ना क्लास में, अभी लिखवाया था ना, क्या है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है क्या, स्क्रीन पे क्या होता है 3 कैपेसिटर के लिए, दिख रहा है, हाँ सही, यस सही, आर यू देयर, Yes, sir. हाँ क्या होता है फॉर्मूला बताओ, N. हाँ C/, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या ये और ये सेम दिख रहे हैं तुमको, एक C है और एक 2C है, क्या दोनों सेम है, No. नो दे आर नॉट सेम, तुम C/N वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हो क्या, No. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगी, 1/C. 1/C1 प्लस 1/C2 वाला जो फॉर्मूला है ना, दिख Yeah. रहा है,
हेलो, Yes, sir. हाँ दिख रहा है ना, 1/c1 + 1/c2 वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, Yeah. वो यूज करो। तो अब देखो वही, इसको c को बोलो 1/c1 है और 2c को बोलो 1/c2 है, और सॉल्व करो, देखो कितना तुमको आता है कि नहीं आता है, 3/2c आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करो जरा। Sir, I have solved it. The answer is coming. हाँ, Yeah, I understand. क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ। I'm not getting the diagram which you are drawing there. you're not getting the diagram. Yeah, अच्छा, I did can. you get this part? Yeah, I got that. उसके बाद में सी, सो इन दोनों को मैंने ये पूरा का पूरा जो कैपेसिटर था इसको मैंने एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, ये एक कैपेसिटर, ठीक है, yeah, और उसी कैपेसिटर को मैंने यहाँ पे लिखा है 2c बोल के, ठीक है। अच्छा, आई विल गिव यू वन सिंपल, एक और तब समझेगा, समझ जाए शायद से। ओके, लेट्स से ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर, लाइक दिस। ओके, उसको भूल जाओ, ये C है, ये भी C है, और ये भी C है। अभी मैंने आपको पूछा कि इसका इक्विवेलेंट क्या है, इस कैपेसिटर, पूरा का ये 3 कैपेसिटर है, मुझे 3 कैपेसिटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक कैपेसिटर चाहिए, मुझे बताओ उस एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में है, यस और नो, yes. दिख रहा है ना। तो अगर ये पैरेलल में है तो ये पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ मुझे, 2C. 2c होगा, ओके, क्योंकि c + c होगा, राइट। तो देखो अब कैपेसिटर को कैसे लिख सकता हूँ, ये c, ये वाला कैपेसिटर प्लस इसका इक्विवेलेंट, मतलब ये 2c वाला कैपेसिटर, समझ में आया, Yeah, I got it. ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास में स्टिल 2 कैपेसिटर है, मुझे एक ही इन दोनों, अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, Series. सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, We have to take 1/c plus. अरे देखो ना बुक में, तुमको याद नहीं तो फॉर्मूला देखो ना बुक में क्या है लिखा है, तुमने नहीं, क्या है सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, 1/c1 Yeah, + 1/c1 plus 1/c. हाँ तो बताओ वैसे, तो ये क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट विल बी हाउ मच, 1/c 1/c plus 1/2c, 2c. ठीक है। तो अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर तुमको एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम लो, तो मैंने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 किया, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो क्या 2 + 1 Yeah, 3, 3 plus 2c. तो ये क्या है 1/c इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट कितना हुआ, इसका रेसिप्रोकल 2c/3, 2c/3. समझ में आया। Yes. देखो मैंने यहाँ पे भी वही किया है, Yes, sir, I got. ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे 2c/3 मिल गया, तो इसको मैंने पूरे को पूरे किससे रिप्लेस कर दिया, 2c/3 से रिप्लेस कर दिया। अभी ये दोनों जो कैपेसिटर्स थे इनका वैल्यू कितना आया, c/2 आया, है ना, क्योंकि दोनों कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। समझ में आया c/2 कैसे आया ये वाला पार्ट, Yes, sir. ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे c/2 लिखा है कि नहीं, ऑरेंज में, ऑरेंज वाले में देखो यहाँ पे c/2 लिखा है ना, देखो c/2 एंड 2c/3 कैसे कनेक्टेड है, Parallel. पैरेलल में कनेक्टेड। तो मैं क्या करूंगा, इनको सिंपली ऐड करूंगा, Yeah. तो देखो तुम 2c/3 प्लस c/2 करो, देखो कितना आता है, 2c/3 प्लस c/2। अब देखो दोनों के बेसिस सेम है क्या, No. डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक एलसीएम, राइट। Yes. तो एलसीएम कैसे लूंगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो देखो क्या Sir, हो I जाएगा, know the calculation. I just had a doubt in the diagram, so I got. यू गॉट इट नाउ, रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो गॉट, बाकी लोग को समझा क्या, ये कितना हो जाएगा, 4c + 3c इज 7c/6। 7c/6. तो देखो इसका वैल्यू कितना हो गया, 7c/6, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7c/6। अब बचा ये आखिरी वाला कैपेसिटर, ये आखिरी वाला कैपेसिटर कितना है, C है, तो अब ये कैसा है, सीरीज में। तो अगेन मैं इसको पैरेलल वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, तो मुझे फाइनल आंसर 7c/13 आएगा। नाउ स्टिल Sir, एनी, हाँ बोलो,
So there should be 1 by C plus 7C by 6 now. 1 by C plus Because the C is there, no? 7C by 6. ओके अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे ओके यहाँ पे 7 आएगा, 7C by 6. ओके मेरा मिस्टेक है यहाँ पे. ओके दिस 7 plus 6 कितना होता है? हाँ स्टिल इट इज सेम, 13 ही आता है. ओके मैं यहाँ लिखने में गड़बड़ किया. ओके हाँ बोलो, स्टिल डाउट? बराबर है, अभी क्लियर है? यहाँ मैंने वो प्रिंट लिखने में मिस्टेक कर दिया था. ओके चलो ऐसे एक और ये लास्ट ले लो. ठीक है, जस्ट सी, फटाफट देख लो एक बार. मैं अभी एक थोड़ा इजी देता हूँ आपको. चलो मुझे बताओ, ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, इसके बीच में इक्विवेलेंट कितना है? ठीक है, कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो? यस सर. चलो ट्राई करो, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा मुझे. हाँ? अच्छा anyone wants to go and break the fast? I mean they can go and do it. Okay, I mean the lecture is already over, I'm just giving you this so that you guys can understand. Okay, and those who want to like break the fast and everything, जिसको करना है they can do. Okay, I have no issues. And please don't switch on your camera and eat. Okay, I'll feel hungry otherwise. Yes, are you guys able to solve this? आ रहा है क्या आप लोगों को कि मैं बताऊं? हाँ जल्दी बताओ फटाफट. Do you guys need hint? हिंट चाहिए किसी को? यस. Yes or no? जल्दी बताओ फटाफट. Do you guys need hint? चलो ठीक है, देखो I'll show you कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है. देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला ब्रांच. कौन सा? ये वाला ब्रांच सॉल्व करते हैं. ठीक है, देखो ये ब्रांच में क्या है, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? कैसे कनेक्टेड है ये लोग? सीरीज में कनेक्टेड है. सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंस ये सारे के सारे सबके वैल्यू सेम है तो मैं सीधा सिंपली क्या लिखूंगा, सी इक्विवेलेंट विल बी हियर फॉर देम विल बी सी अपॉन 3, क्योंकि सी अपॉन एन होता है ना. यहाँ पे कितने कैपेसिटर? 3 है, तो सी अपॉन 3 हो जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब ये कैसा दिखेगा अभी? ऐसा. ये हो जाएगा सी अपॉन 3, ये सी है एंड देन अगेन ये हैव अ कैपेसिटर. अब देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है. पैरेलल में है तो मतलब क्या है, इसको मैं सिंपली ऐड करूंगा. इसको मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, सी प्लस सी अपॉन 3. अगेन आई टेक एलसीएम, तो 3 अपॉन 3 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4c अपॉन 3. तो इसका इक्विवेलेंट क्या आया, 4c अपॉन 3. तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ
एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर, ये है 4C/3 और ये C है। अब ये सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, C इक्विवेलेंट होगा 1/C प्लस 3/4C। अगेन मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 और 4, तो ये क्या हो जाएगा 7/4C, तो C इक्विवेलेंट विल बी 4C/7। ओके, सबको समझा क्या ये वाला पार्ट? Yes, sir. कोई डाउट है? No. नो? चलो ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो, आई विल गिव यू द क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है, स्टार्टिंग में। ओके, चलो, so I'm stopping here. Still, if anyone want to ask anything, they can ask. Otherwise, we are done. Okay. Anyone want to ask anything? Any doubts? No, sir. No doubts? Okay. चलो फिर ठीक है. You guys can go. Bye.